Hi everyone, this is Mansi, and today I'll be sharing a story with you. A certain event, and that event was horrible. Now, one way or the other, most of you guys must have gone through, that same thing. And if you have not, trust me, I don't want you to go through, with it. Because basically, this is a very common thing, toxic friendships. But in my case, it was like horrible. Now, let me share the story with you. So, this is the story uh, when I was in ninth, most precisely towards the end of the ninth class. मेरी ninth class एकदम ख़त्म होने वाली थी. So तब मेरे साथ इवेंट हुआ था, but the build-up was from the very start of the ninth grade, and I have done some very horrible mistakes that sort of led to these situations, and I had very toxic people around me. So basically, I changed my school when I was in eighth. When I was the eighth pass out, मैंने ninth के लिए दूसरा स्कूल चूज़ किया था. And जब मैंने ninth में I entered that school, there were many people who have been in that school for years, and they had their connections, they had their friends, and I was like a very new student there. So the pressure and the excitement of very new things, the pressure of building friends to find good people, being in ninth. So I just wanted very good friends, like sort of good in studies, and even if they are not good in studies, I just wanted people who are good in nature, because sort of I want a friendship in which you are actually sort of sharing a very good behavior with each other, और सबको वो चीज़ चाहिए होती है. So what happened with me was, I made a friend and she was a girl. We used to sit, like, let me tell you, she used to sit at the very last bench, the last corner, window side वाली bench पे. And मुझे 1-2 हफ्ते हो गए थे स्कूल में, and I started sitting in front of her. और most precisely, if I'll tell you, she was sort of a girl who used to sit alone in lunch, वो कभी कभी अपने इधर उधर लोगों से बात कर लेती थी, and she was very good in studies. And sort of at that point, I don't know, I had this mindset at that point. अब मेरा वो mindset नहीं रह गया, but at that point I had this mindset that I want to make, the friend I want should be studious in some way, because sort of I wanted to be good in studies, and I wanted that sort of people around me. So I started talking to her, and she seemed interesting at that point, trust me. So I eventually started talking to her, and I wanted to be her friend. And few days passed, and I started sitting in front of her, जो पे आगे वाली सीट थी. And we used to laugh with each other. We had certain common things. And मैं sort of उस time बहुत introverted type की लड़की थी. I was sort of introverted. बट मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी अपने उस जोन से निकलने के लिए और दोस्त बनाने के लिए. मतलब चाहे वो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही हो, मैं अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाने की बहुत कोशिश करती थी. एट द सेम टाइम इट वॉज वेरी टायरिंग, बट आई हैड टू डू दैट, बिकॉज मुझे अकेले तो सर्वाइव नहीं करना था स्कूल में. सो या, तो क्या हुआ, at one point she started saying these things that, Mansi, you are sort of my best friend. And I was in ninth class, and I was like, I think 16 years old something. And उस टाइम आपका माइंडसेट ये होता है ना कि अगर आप कोई सामने से बेस्ट फ्रेंड बोले तो मैं वो चीज़ अच्छी लगती है सुन के. सॉर्ट ऑफ यू आर इमेच्योर एट दैट पॉइंट कि तुम्हें कोई एक ऐसे बेस्ट फ्रेंड भी अपना बोल दे, यू स्टार्टेड टेकिंग इट पर्सनली कि या आई डू हैव अ बेस्ट फ्रेंड. सो या, तो ऐसा हुआ. वी यूज टू लाफ विद ईच अदर वगैरह, वो मुझसे सारी चीज़ें शेयर करती थी. देन इवेंचुअली 2 लड़कियाँ मेरी क्लास में ऑलरेडी थी, बट दे स्टार्टेड टॉकिंग टू माई डैड फ्रेंड जो मेरे पीछे बैठती थी, ठीक है. एंड सूनर और लेटर, the 3 of them started going to the same tuition.
ठीक है. एंड मेरा घर बहुत दूर था, मैं अलग एरिया में रहती थी, वो एक सेम एरिया में रहते थे. एंड दे स्टार्टेड गोइंग टू द सेम ट्यूशन. तो ऐसा सा सीन हुआ. एंड इवेंचुअली आई वॉज सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोवर्ट, बट फॉर हर आई यूज टू कम आउट फ्रॉम माई कम्फर्ट जोन. और मैं उससे बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी बात करने की, और मैं उसके आपसे एडजस्ट करने की भी कोशिश करती थी बहुत ज़्यादा. बट द थिंग इज़ वो तीनों एक दूसरे के बाद पास रहते थे, वो ट्यूशन में मिलते थे. एंड दे वर सॉर्ट ऑफ गर्ल्स जिनको गॉसिप्स वगैरह से बहुत पसंद थी. एंड आई वॉज नॉट दैट गर्ल. सब लोग नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, ठीक है. सो दे यूज टू शेयर सम गॉसिप्स और टी वगैरह. एंड मैं उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाती थी, तो मैं उस चीज़ में इतना एंगेज नहीं हो पाती थी एट द सेम टाइम. बट दैट वॉज ऑल राइट, ठीक है. बट मैं उन तीनों के साथ नेचर में बहुत अच्छी थी, मैं हेल्पफुल थी नेचर में. बट इवेंचुअली क्या होने लग गया, द थ्री ऑफ देम स्टार्टेड एक्सक्लूडिंग मी. नाउ एक्सक्लूडिंग इन द सेंस कि एक बार ऐसा कुछ इवेंट हमारे स्कूल में फंक्शन वगैरह चल रहा था, बहुत सारे ऐसे बाहर गेम्स लगे हुए थे, स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे. सो व्हाट द थ्री ऑफ देम सेड कि मानसी हम तीनों बाहर स्टॉल्स वगैरह देख के आते हैं, तो यहीं पे रहे. मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि वो मुझे यहाँ रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं क्लास में. मतलब और भी सुनने ही में मैं ऐसे बता रही हूँ, तो आप लोगों से सुनने में ही बहुत वो अजीब लग रहा हो कि व्हाट द मतलब व्हाट ऑन दी अर्थ, मतलब मुझे ऐसे क्यों बोला. तो आई वॉज लाइक ऑल राइट. बट बेसिकली उसका एक और रीज़न था कि हमारे ग्रुप में एक और लड़की थी, जैसे 5th गर्ल थी, वो क्लास में ही थी, ठीक है. एंड मेरे ख्याल से उन तीनों को ये था कि उसके साथ कोई ऐसा रहे. एंड द थ्री ऑफ देम विदाउट इवन आस्किंग मी, विदाउट इवन taking my opinion, the three of them said specifically that girl who used to call me her best friend, जो मेरे पीछे बैठती थी, she said that मानसी क्लास में रह ले, हम लोग घूम के आते हैं. And that was hurtful. I was like all right. बट बेसिकली उसका एक और रीज़न था कि हमारे ग्रुप में एक और लड़की थी, जैसे 5th गर्ल थी, वो क्लास में ही थी, ठीक है. एंड मेरे ख्याल से उन तीनों को ये था कि उसके साथ कोई ऐसा रहे. And the three of them, without even asking me, without even taking my opinion, the three of them said specifically that girl who used to call me her best friend, जो मेरे पीछे बैठती थी, she said that मानसी क्लास में रह ले, हम लोग घूम के आते हैं. And that was hurtful. I was like all right. Then eventually क्या होने लग गया, वो तीनों ऐसे साथ बैठते थे, वो सारी गॉसिप्स एक दूसरे को शेयर करते थे. एंड मुझे ना बहुत बार तो बहुत वैसा फील होता कि ये तो चीज़ मुझे पता भी नहीं, और उन तीनों को वो चीज़ पहले से ही पता है कि हाँ ऐसा हो रहा है. लाइक द गर्ल हु यूज टू सिट बिहाइंड मी, शी यूज टू शेयर सर्टेन थिंग्स विद देम. फिर बाद में जब हमारे से रिसेस में ग्रुप कन्वर्सेशन होती थी, तो वो बहुत सारी चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं थी कि हाँ ऐसी भी बात हुई इन तीनों के बीच में. सो आई वॉज लाइक ऑल राइट. देन केम माई स्कूल ट्रिप. स्कूल ट्रिप में क्या था, द गर्ल हु यूज टू सिट बिहाइंड मी, शी हैड अ परसूअर. देयर वॉज अ गाय इन अनदर सेक्शन हु यूज टू लाइक हर. सो ग्रुप में कुछ हमारे ट्रिप पे कुछ ऐसा सीन पड़ा दैट गाय वॉज विलिंग टू स्पेंड द टाइम विद हर ड्यूरिंग द ट्रिप. एंड सॉर्ट ऑफ शी इंट्रोड्यूस दैट गाय टू ऑफ दैट गर्ल्स, जिससे वो लाइक उसने से इवेंचुअली बात करनी शुरू कर दी थी एंड मुझे एक्सक्लूड कर दिया था. एंड द 4 ऑफ देम यूज टू वाइब विद ईच अदर, उनकी वाइब बैठती थी, और मुझे तो इंट्रोड्यूस करवाया नहीं था उस लड़के से. एंड आई वॉज वेरी एक्सक्लूडेड ड्यूरिंग दैट ट्रिप. तो वो पूरे टाइम वो चारों लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना आगे आगे चल रहे हैं, और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ, और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा. रेस्टोरेंट में भी जब हम खाने बैठे थे, एक कुछ ढाबा टाइप था, द 4 ऑफ देम वर शेयरिंग सर्टन कॉमन पॉइंट्स और गॉसिप्स और टी वगैरह. एंड आई वॉज वेरी मच एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट. आई हैड नो नॉलेज ऑफ वट वॉज गोइंग. देन दैट गाय वेंट अवे. एंड फिर एक पॉइंट आया व्हेन वी वर अबाउट टू गो टू द फेरिस व्हील, ठीक है. एंड एक कंपार्टमेंट में, like I told you, there was this 5th girl who was in our group, but that 5th girl didn't really care about उनके बारे में, because she had other friends too. But उस time that 5th girl was with us. तो फेरिस व्हील में जो एक होता है कंपार्टमेंट, उसमें 3 ही लोग ज़्यादा बैठते थे, मतलब 3 लोग ही से बिठा रहे थे, ठीक है. एंड आई वॉज लाइक वेटिंग विद देम इन द लाइन, एंड वट द गर्ल behind me
said to me again the same thing, मानसी हम तीनों ना एक कंपार्टमेंट में बैठ रहे हैं, तू और वो जो लड़की है, तुम देख लो ऐसे करके, ठीक है. एंड वो बैठने चले गए. एंड आई वॉज लाइक ब्रो, यू यूज टू बी यू नो माई बेस्ट फ्रेंड, सो लाइक व्हाट हैपेंड. सो आई वॉज लाइक ऑल राइट. फिर बस के ट्रिप में भी उन्होंने मुझे आगे से बिठा दिया, बिकॉज वो 3 सीटर होती हैं, 1 2 होती हैं, 3 होती है, सो वो 3 साथ में बैठे थे, मैं पूरे टाइम आगे बैठी थी, ऐसे करके हुआ. देन केम द मोस्ट टॉक्सिक थिंग अबाउट देम. आई यूज टू लाइक अ गाय इन माई 9th grade. Trust me, that was my biggest mistake. So I used to like this guy. Not very much. I was like not like so over him, and I wasn't really planning on confessing him. मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी at that point. I wasn't really into that. But they, the 3 of them had sort of an idea. बहुत पहले जब हमारी फ्रेंडशिप खराब होने लगी थी, उससे पहले उनको आइडिया था. And they used to tease me about him, make something जैसे होता है ग्रुप में. बट इवेंचुअली क्या हुआ, हमारे स्कूल में कुछ ऐसे स्पोर्ट्स फंक्शन कुछ ऐसा चल रहा था. एंड मैं क्लास में नहीं आई थी, मैं 9th में आई थी. एंड मुझे था कि मेरी क्लास में अच्छी खासी बने, मेरी क्लास में लड़कों से भी दोस्ती हो, लड़कियों से भी दोस्ती हो, मेरी एक अच्छी इमेज हो, वो सब चाहते हैं. एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड दैट टू. बट क्या हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गर्ल हु यूज टू सिट बिहाइंड मी एंड कॉल हर बेस्ट फ्रेंड. आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल जो कि उन दोनों में से 2 लड़कियाँ थी ना, उनमें से एक लड़की ने शी यूज टू लाइक अ गाय इन हर क्लास टू, एंड दैट गाय लाइक्ड हर टू. सो बेसिकली वो और जो लड़का था जिसको वो लड़की पसंद करती थी, वो लड़का उस लड़के का दोस्त था whom I used to like. Alright. So that girl who उनमें से मेरी दोस्त ने, she told the guy she used to like or she liked that I like this guy. Alright, she told him. और मैं नहीं चाहती थी वो किसी को भी बताए, और उसने बता दिया without even taking my permission or consent. She told that guy. उसने बता दिया उस लड़के को. And then what happened? The whole of the जितने भी लड़के थे ना क्लास में, they all started ignoring me. They all started ignoring me from the next day, because obviously that guy didn't like me back, and I don't really mind. मुझे मैं भी उसके ऊपर like I wasn't really over the heels for him, and I wasn't really planning to confess. But उस लड़की ने जब उसको बता दिया, and eventually I used to like that guy in the very starting of 9, because that time he was like sort of good और उसकी personality अच्छी थी. But eventually when I started noticing him, I wasn't really fond of him. But she told that that guy she liked, and that guy told the guy I used to like, and that guy obviously didn't like me back. And he was such a nuisance person. What he did, he started ignoring me. Whenever the teacher used to make me sit beside him, for some reason कि आगे आके बैठ जाओ वगैरह, he used to swap seats with his friends and make me feel like like I did something wrong. वो बोलता था कि मुझे इसके बगल में बैठना ही नहीं है. And there was a point when I had many guy friends in my class, और वो उसके भी दोस्त थे. From that day onwards, each and every guy started ignoring me, and I don't even know why. The whole of the class started ignoring me, and I totally cut off from those 3 girls. मैंने cut off कर दिया, and I made a new friend, and like she is sort of my best friend now. अभी 3-4 साल हो गए हमारी दोस्ती को. But those 3 girls I totally cut them off. Yeah. और एक और चीज़ थी इनके बारे में कि वो मुझे ना वो तीनों जो लड़कियाँ थी, वो मुझे किसी और लड़की से ना बात भी नहीं करने देते थे जब मैं क्लास में होती थी. When I used to talk to a certain girl whom I used to admire, they used to back bitch me, or and back bitch her, and sort of tell me, and sort of started telling me that don't talk to her, she's like this and she's like this. And I was like, alright bro, I don't even want to be around you at this point. Then eventually I totally
cut off from them during my pre boards, not pre boards, pre finals in my 9th grade. और मैं अकेले बैठने लग गई. मैं पूरा एक हफ्ता क्लास में अकेले बैठी थी. मैं किसी से बात नहीं करती थी. यू नो रिसेस में भी किसी से बात नहीं करना, क्योंकि लड़के भी ऐसे बात नहीं करते थे एज सच. एंड मेरी पूरी क्लास से मतलब उन लड़कियों से मैंने कट ऑफ कर लिया था अपनी विलिंगनेस से. और मैं पूरे एक हफ्ते अगर मतलब एंजाइटी में, मुझे एंजाइटी डेवलप हो गई थी उस टाइम पे, एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई थी और मैं अकेले बैठती थी. एंड दैट वॉज सो लोनली. फिर मेरी एक लड़की दोस्त बनी, हु स्टार्टेड नोटिसिंग मी, हु केम टू मी ऐसे करके. एंड तब मेरी उनसे ऐसे दोस्ती हुई. सो बट द फैक्ट, जब हमारा ऐसे पीटी पीरियड होता था, यू नो स्पोर्ट्स पीरियड, व्हेन वी यूज्ड टू हैव स्पोर्ट्स पीरियड, दैट गाय whom you know who got to know about all who got to know that I like him, we had this game, you know जिसमें you have to throw the ball, you know you make a circle and there are certain people inside and you throw the ball and you know hit the person inside and that person gets eliminated. वो वाला गेम होता है ना एक. So whenever आखिर में एक पॉइंट आया कि I was in the circle and that guy was, you know he was the one who had to throw. और सिर्फ मैं और एक लड़की बची थी या कोई लड़का बचा था ग्रुप में, हम 2 ही बचे थे. एंड दैट गाय वॉज नॉट विलिंग टू हिट मी बिकॉज, एंड दैट वॉज लाइक मैं अकेले कोने में खड़ी हूँ, मतलब मुझे कोई मारने के लिए विलिंग भी नहीं हो रहा. एंड दैट वॉज सो सैड बिकॉज दैट वॉज सो सैड. एंड फिर लड़के जो मेरे क्लास में हैं, दे यूज टू टीज हिम अबाउट मी, मेरे ही सामने इन अ वेरी वेरी बैड वे. एंड दैट वॉज माई ब्रेकिंग पॉइंट, दैट वॉज रियली माई ब्रेकिंग पॉइंट. एंड आई वॉज चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम दैट पॉइंट बिकॉज एक नए स्कूल में एंटर होना एंड तुरंत ही ये सारी चीज़ें हो जाना. एंड इवन when my friend जिनके मैं ग्रुप में थी, उनमें से किसी एक का बर्थडे था. when I went to their birthday, you know they 3 were willing to click pictures with each other, the 3 of them. और मुझे फ़ोन पकड़ा देते कि हमारे पिक्चर क्लिक करो. they didn't click any picture with me. हमारी ग्रुप फोटो थी, मैं ग्रुप फोटो में इंक्लूडेड थी ऑब्वियसली, बट वो जो तीनों ऐसे साथ में ऐसे पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं. एंड आई एम नॉट इन 3 वाले ग्रुप, या हम 4 को भी मैं पिक्चर क्लिक कर रही हूँ. एंड हमारी ऐसा नहीं थी कि मेरी जिसको जो मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलती थी, मेरे साथ एक भी सिंगल पिक्चर नहीं थी, बट उसने बाकी उन 2 लड़कियों के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई थी. बट एट द सेम टाइम दे वर नॉट इवन विलिंग टू यू नो कि मानसी हम तेरे मतलब उनको मेरे को मुझसे दोस्ती भी रखनी थी और मुझे ढंग से ट्रीट भी नहीं करना था. सो दैट what happened to me, and that was so messed up. So I hope, you know, I don't think there was anything in this video to be liked about, but yeah, that was one hell of a horrible experience, and I don't want you know guys to went through all of it. Trust me, अगर तुम्हारा बहुत 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 अच्छा दोस्त नहीं है जिसको तुम टोटली ट्रस्ट कर सकते हो, never tell your secrets to them. जैसे कि तुम किसी को पसंद करते हो वगैरह, it is gonna turn out in a very bad way. Thank you for watching this video. Bye bye.